Now third type of intermolecular force of attraction is dispersion forces. Now dispersion forces or London forces, it is a force of attraction arises due to the motion of electrons. It is believed that the electron cloud of the molecules may be distorted so that an instantaneous dipole moment is produced, in which one part of the molecule gets slightly more negative than the rest, and this instantaneous dipole induces dipole in the neighboring molecule. These molecules gets attracted to each other as in the case of dipole moment, and it is found almost in gases. For example, this is the one atom of helium molecule, this is the second atom of helium molecule, and due to the instantaneous dipole of one of the molecule, it induces the dipole moment in the another molecule, and this force of attraction is called as London forces or dispersion forces. And fourth type of bonding is hydrogen bonding, which we have discussed in previous chapter, so I am not going to repeat here. Next, intermolecular forces versus thermal energy. Now intermolecular forces, just now we have discussed that the force of attraction between the molecules of the substance which try to bring the molecule closer to each other. Now thermal energy, it is due to the temperature which results into the movement of the molecules and hence try to keep the molecules apart, is called thermal energy. And in gases, the intermolecular force of attraction is weakest. In gases, the intermolecular force of attraction is the weakest, so thermal energy is highest. याद रखना है कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमज़ोर होता है, लेकिन थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक उल्टा सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है। Now this by diagram also we can see that solid, liquid, gases. Here gases has the least intermolecular forces of attraction, and here the solid has the least thermal energy. Now solids. Solids have rigidity because thermal motion is too weak to overcome the strong intermolecular forces of attraction. Solid is rigid because the thermal motion is too weak to overpower the strong intermolecular forces of attraction. In gases, vice versa, thermal energy is so high that the molecules cannot come closer to each other, therefore they are free to move, they have large empty spaces among them. And in liquid, there is a balance between the thermal energy and the intermolecular forces of attraction, so the molecules are far apart, but not so much far apart as in gases. Now a solid melts on heating. So when it will be, solid has the minimum thermal energy, so when solid melts on heating, the thermal motion increases. Now we have to study basically in this chapter is the gaseous state. In periodic table there are 11 elements which exist in gaseous state under normal conditions of temperature and pressure. They are in group 1 hydrogen, in group 15th nitrogen, in group 16th oxygen, in group 17th
fluorine and chlorine. And group 18th, all the members, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So total 11 elements are known which exist in gaseous state under normal conditions of temperature and pressure. Now general properties of gases. So again, this we are studying from lower classes. First, shape and volume. Neither definite shape nor definite volume. They take the shape and volume of the container. Density, lower than liquid and solid. उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, उड़ते रहते हैं. Highly compressible, same amount of gas you can keep in a small container also by applying pressure. So highly compressible. Diffusibility, gases can intermix completely in all proportion. This you can do a colored nitrogen dioxide gas in one vessel and a colorless hydrogen gas in another vessel and allow them to mix. After some times you will see that the color of both the vessels has become same. So they are easily diffusible. Next is pressure. They exert pressure in all direction. Now measurement of mass. This we have studied in first chapter, that is mole concept. Now suppose we want to measure the mass of any substance, then or we have to study here in gas, so we will take the example of gas only. So first we will weigh the container containing gas, then empty it, then again weigh the container, and after subtracting the filled container and the empty container, we will get the mass of the gas. And then by the formula, number of moles is equal to mass upon molar mass, we can find out the that is gas. तो कुछ नहीं, जिस कंटेनर में गैस भरी है पहले उसका वजन लीजिए, फिर इसको खाली करिए, उसका वजन लीजिए, दोनों को घटाइए तो आपको गैस का वजन मिल जाएगा. मोल्स में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले से करिए. और ये आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. 23 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मॉलिक्यूल्स. नाउ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. We know that volume of gas is volume of container, and SI unit of volume is meter cube, and 1 meter cube is equal to 10 to the power 3 decimeter cube. This is equal to 10 to the power 6 cubic centimeter. 1 ml is equal to, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये याद रखना है. 1 ml is equal to 1 cc and 1 liter is equal to 10 to the power 3 cubic centimeter is equal to 1 decimeter cube. This is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए. न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आपको मिल जाता है, तो कन्वर्ट किए बिना आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. नाउ atmospheric pressure is measured by barometer, and this is the diagram of barometer. There is one vessel filled with mercury, and there is an inverted tube. The pressure by which this mercury goes gives the height, and this height is the atmospheric pressure. The height of the mercury gives us the atmospheric pressure, and it is 760 mmHg. Now measurement of pressure of gas. ये गलती करते हैं बच्चे, गैस को हम लोग नापते हैं मैनोमीटर से. मैनोमीटर कुछ इस तरह से डायग्राम रहता है, एक ऐसे
गोल वेसल रहता है जिसके अंदर गैस भरी रहती है, और दो जो है आपके लिम्स होते हैं। एक लिम थोड़ा लंबा रहता है, ये थोड़ा सा लंबा रहता है, और एक छोटा रहता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन लिम और एक होता है क्लोज्ड लिम। अगर ओपन लिम है तो इसका मतलब ऊपर से भी जो है आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यहाँ वो 740, आप इसको बेटर यू राइट डाउन 760। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द ओपन एंड। तो इसके अंदर यहाँ गैस प्रेशर दे रहा है और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है। तो होगा क्या कि इसका जो प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मरकरी का लेवल कम हो जाता है और ये ऊंचा हो जाता है। इन दोनों का जब डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, सपोज दिस डिफरेंस इज 100 mmHg, तो हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वो हाइट घटा देते हैं तो हमें प्रेशर में, इसका मतलब गैस का प्रेशर यहाँ पर जो है वो 660 mm ऑफ Hg है। अगर वहीं पे जो है क्लोज्ड लिम मैनोमीटर लिया हुआ है, मतलब ऊपर से पूरी तरह से बंद रहता है, तब ऊपर से कोई प्रेशर तो लग नहीं रहा है, जो भी प्रेशर लग रहा है वो गैस की वजह से। अब गैस प्रेशर लगाएगा तो इसके लिम्स को, इस मरकरी को धक्का देगा तो इसके यहाँ पे इधर इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है, जो भी दोनों लिम के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे देता है प्रेशर ऑफ द गैस। तो दोनों तरीके में आपको देखिए जो है, जो भी आपको तरीका मिलेगा उस तरीके को आप ले लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कम्स अब इसमें आपको कुछ ध्यान देना है कि द क्लोज लिम मैनोमीटर इज यूज फॉर गैसेस हैविंग प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लोज लिम का इस्तेमाल हम उन गैसेस के लिए करते हैं जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, और ओपन लिम जो है हम किसी भी तरीके की गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the mercury level is always higher in the longer limb. If the pressure of the gas is greater than the atmospheric pressure, then the mercury level will be always higher in the longer limb, and the difference of the two level is added to 760 mmH। तो वहाँ डिफरेंस हमारा 100 आया था, 100 में 760 जोड़ देंगे तो वो हमारा जो है प्रेशर हो जाएगा आपका 760 प्लस 100 860 mmHg। अब मान लीजिए आपने जो पीछे डायग्राम देखा बैरोमीटर में, उसकी हाइट जो है वो h सेंटीमीटर है, एरिया a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो a इंटू h, वॉल्यूम ऑफ द मरकरी कॉलम हो जाएगा a इंटू h। और डेंसिटी ऑफ द मरकरी कॉलम, ये जो है p नहीं है, दिस इज रो, पूंछ थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, दिस इज कॉल्ड रो डेंसिटी। सो मास ऑफ मरकरी कॉलम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आपको मालूम है D इक्वल टू m/v होता है, D इज इक्वल टू m/v, तो m इज इक्वल टू D इंटू v, तो वही यहाँ पर है, मास ऑफ द मरकरी कॉलम इज, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज डेंसिटी। सो वेट क्या है कि वो मास जिसको ग्रेविटी से हम अट्रैक्ट करें कोई अर्थ, तो वो कहलाता है वेट। सो a इंटू h इंटू रो इंटू g। नाउ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो a इंटू h इंटू रो इंटू g बाई एरिया। यहाँ से आपका एरिया कट जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू h d g, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, this is equal to 760 mm of Hg. Now conversion, 1 atmosphere is equal to now 1 atmosphere is equal to, ये याद करना होगा, 1.01325 बार,
and 1 bar is equal to 0.987 atmosphere. SI unit of pressure is pascals, small, that is abbreviation is PA, and 1 atmosphere is equal to 101325 pascals. Now measurement of temperature. The temperature of any body can be measured by hotness or coldness of the body. There are 3 scales which are used to measure the temperature: centigrade, Fahrenheit and Kelvin scale. Now conversion can be done, this again you have done in class 9. Centigrade by 5 is equal to F minus 32 by 9. F Fahrenheit है और C जो है आपका सेंटीग्रेड है, और केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15. केल्विन जो है हमारा एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, इसके साथ कभी भी हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं. नेक्स्ट इज गैस लॉस. गैस लॉस में हमको पढ़ना है पहला बॉयल्स लॉ. वेरी इजी, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो उसमें कुछ रटना नहीं है, समझ में आ जाता है. टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. मैथमेटिकली V is inversely proportional to P. Removing the sign of proportionality, V is equal to K into 1 by P, or PV is equal to K. Here constant at constant temperature है, so P1 V1 is equal to P2 V2. Now verification of Boyle's law. Just now we have said that is pressure or volume is inversely proportional to, by both way you can say. Now here you can say the volume is 500 centimeter cube and pressure is 200 mmHg. जैसे ही हमने इसमें और जो है प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. मतलब प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम हो गया कम. तो इस डायग्राम से भी हम एक्सप्लेन करते हैं बॉयल्स लॉ को. दूसरा है इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये भी आपको प्रूव कर रहा है कि प्रेशर ज़्यादा है वॉल्यूम कम है. जैसे जैसे जो है प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा. और ये अलग अलग आपके टेम्परेचर का ग्राफ है. ये मान लीजिए T1 पे है, ये T2 पे. इसी तरह से अगर हम ग्राफ बनाए P एंड 1 बाई V है, दिस इज 1 बाई V, तो आपने बताया कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये एक स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं. ये भी प्रूव करता है बॉयल्स लॉ को करेक्ट. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें PV और P के बीच में तो भी हमें एक कांस्टेंट लाइन मिलती है. तो ये आपको बॉयल्स लॉ का ये भी एक ग्राफ है. अगर हम ग्राफ खींचें बिटवीन प्रेशर और वॉल्यूम, उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्म ग्राफ. व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन pressure and volume at constant temperature, then it is called as isotherm graph. Now this is again graphical verification of Boyle's law. 1 by V P straight line मिला है. PV और T अलग अलग टेम्परेचर पे कर लिया. T2 यहाँ पर बड़ा है T1 से, तो हमें लाइन पैरेलल टू P मिलता है. और V और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. वो उल्टा कर दिया, कुछ नहीं, बस कोऑर्डिनेट चेंज किया है. तो भी हमें यही मिल रहा है. वॉल्यूम का जो है आपका कम है, प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है. Next is significance of Boyle's law. Now Boyle's law proves that gases are highly compressible.
the more it is compressed, denser it will become, and a time will come that it will liquefy. Now, at constant temperature for a fixed mass of a gas, density is directly proportional to pressure. Density is डायरेक्ट, जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी। और हमें ये भी मालूम है कि डी का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बाय बॉयल्स लॉ। पी वी इज इक्वल टू के, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, और वी इज इक्वल टू के बाई पी, इसी से मिला है। और डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, हमने वी की जगह यहाँ पर के बाई पी लगा दिया, तो दिस इज इक्वल टू एम बाई के इंटू पी, और एम बाई के को हमने ले लिया के डैश, तो के डैश कांस्टेंट है, सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ हमने प्रूव कर दिया। नाउ एट ऑल्टीट्यूड, जब ऊंचाई पे जो है जाया जाता है तो ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, और ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ़ होगी, बेहोशी छाएगी, और इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो ये बॉयल्स लॉ पे डिपेंड करता है कि एट हायर ऑल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, सो एयर इज़ लेस डेंस, so less oxygen is available for breathing, person feels uneasiness, headache, so mountaineers have to carry oxygen cylinder with them. So this is application भी आप कह सकते हो, और significance both are same. now ये NCERT का आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है कि what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये फॉर्मूला, आपको जहाँ जैसे ही पता चला 30 डिग्री मतलब कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो फॉर्मूला हमको ये लगाना है, और आपको प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 1 बार, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 500, और वॉल्यूम जो है आपका V2 जो है 200 दिया हुआ, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, P2 इज इक्वल टू 2.5 बार। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आधा नंबर आपका कटता है, इसलिए आप क्लास 11 से क्या छोटी क्लासेस से कहा जाता है कि ये आप जो है वो ध्यान रखिए ना। सेकेंड न्यूमेरिकल है, ये भी 5.2 है कि अ वेसल ऑफ 120 ml, दैट इज ये आपका हो गया V1, कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया आपका P1 1.2 बार। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, दिस इज V2, ये आपका V2 हो गया। और देखिए टेम्परेचर फिर 35 डिग्री, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब हमको क्या निकालना है, मतलब ये लॉ कौन सा लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा, और ये हमको P2 निकालना है। फॉर्मूला में सप्लाई सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए और आपको मिल जाएगा आंसर। Now second law we have to study is Charles law. So now Charles law states that pressure remaining constant, Charles law states that pressure remaining constant, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature. तो ये इसी को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0/273 इंटू टी, और आप यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते जाएंगे, आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो V0 इज इक्वल टू 1 प्लस T/273। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर, पिछले वाले में क्या था, हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो उसको हम लोग कहते थे आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है
इसलिए हम इसको, इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। आप थोड़ा सा रिलेट करिए, प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर की यूनिट होती है बार, आइसोबार। टेम्परेचर है तो आइसोथर्म कहलाता है। बॉयल्स लॉ वाले ग्राफ आइसोथर्म कहलाते हैं, चार्ल्स लॉ के ग्राफ जो है वो आइसोबार कहलाते हैं। ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। At constant pressure, the straight line is obtained between volume and temperature. अब आप यहाँ देखिए कि इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वॉल्यूम ये है, इसका मतलब कि इसको फिर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं ले जाके, तो हमें जो है नेगेटिव में जाता है, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इस टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। अभी तक तो यहाँ पे गैसेस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे रहता है। इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑल्सो एंड टू एक्सप्लेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अगर हम ग्राफ खींचते हैं वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के बीच में और अलग अलग प्रेशर पे P1, P2, P3 सो ऑन, तो आप देखेंगे, इसको पहले तो आइसोबार कहते हैं, कह दिए। और जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा जो है ग्राफ उतना ही नीचे की साइड रहेगा। लेस विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। इट मीन्स P4 इज़ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे दिया है P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 इज लेस देन P4। P4 सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका स्लोप सबसे नीचे। और फिर यहाँ देखिए यहाँ तक ही है, फिर ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब उन्होंने ग्राफ को खींचा है वो यहाँ पे -273.15 है और कहीं इसके यहाँ आसपास जो है उनका 0 डिग्री है। Next is absolute zero and absolute scale temperature. It is the lowest possible hypothetical or theoretical temperature of -273 degrees centigrade at which a gas is supposed to have 0 volume is called absolute ज़ीरो और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब जो है और आसान तरीके से आप चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V/T इज इक्वल टू K, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। 4 में से 3 पता है तो चौथा हम आराम से निकाल सकते हैं। Now significance of Charles law. We know that कि temperature increases, the expansion of air increases, so density decreases. Thus hot air is lighter than the atmospheric pressure air. Due to this law, the hot air balloons which rises up are used for meteorological operation. गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, आसानी से उड़ सकती है, ऊपर राइज कर सकती है, तो इसी प्रोसेस को, इसी लॉ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट the intermolecular force of attraction and the 2 laws, Boyle's law and Charles law, and their significance.